अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, मैं इस वक्त थाना फिरोज़वाला में मौजूद हूं, जहां कुछ रोज़ कबल खेतों में एक मासूम बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस को इस लाश की जब इतला मिलती है तो पुलिस लाश को अपने कब्ज़े में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और चंद ही घंटों में पुलिस उस मुलज़म को गिरफ़्तार कर लेती है। वो मुलज़म कोई और नहीं बल्कि उसी मासूम बच्चे का चचाजाद भाई है। मुलज़म इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उनसे जानते हैं कि उसने ये वारदात क्यों की। मेरे साथ वो मुलज़म, वो सफाक मुलज़म जिसने 9 साला बच्चे को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और मेरे साथ मौजूद है। उससे जानते हैं कि इसे क्या नौबत पेश आई कि इसने अपने चचाजाद भाई को चीज़ का बहाना बनाकर वो खेतों में ले जाकर गया और अपने एक साथी की मदद से तेज़ धार आले के साथ उसका गला काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो इससे जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और इसने ये क्यों किया। अच्छा, मुझे बताओ क्या नाम है आपका? काशफ। काशिफ। वो बच्चा क्या लगता था आपका? चाचे का बेटा। अच्छा अच्छा, तो क्यों आपने उसको कत्ल किया? क्या मसला क्या था तुम्हें? शादी करनी बहन से। मोहब्बत करते थे उसकी बहन से? हाँ जी। तो अपने अब्बू को कहना था, अपनी अम्मी को कहना था, अपने चाचू, अपने ताए को कहना था, जिसकी बेटी थी उसे कहना था। क्या सुना जवाब दे देता। उन्होंने इसलिए जवाब दिया होगा ना कि आपकी हरकतें ठीक नहीं हैं। बस वो नहीं पता लगेगा। तो काम क्या करते हो? मजदूरी करने किस किस्म की मजदूरी करते हो? बाहर किसी ना तुर चीज पट्ठे पुट्ठे बटन। ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। बस नहीं पता लगेगा। ਤੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। नहीं ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? शायद बहाना पा गए। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? घरों लगे। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? हाँ जी। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? पिंडों बाहर ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? मुंडा हजीज नाम का ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? भाग चुका। ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ? यार दोस्त मेरा। ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? कहा 2-3 दिन पहलों। ਕੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? और उन्हें दूजे मुंडे बनाए तो मैं आखिरी दिन लग्या सन नाल। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? 3-4 किले पिंडों बाहर। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਛਾਲ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਭਾਈ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਸ ਹੁਣ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਘਰ ਆ ਸੀ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਛੁਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਬਸ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ? ਮਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਠਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ। ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਭਾਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ।
ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। नाज़रीन, इसकी जो चेहरा है वो शर्म से झुका पड़ा है। इसको शर्म नहीं कहते, इसको बल्कि बगैरती कहते हैं। ये वो शख्स था जिसने अपने सगे चाचे के बेटे को सिर्फ चीज़ का बहाना बनाया कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चीज़ लेके देता हूँ। उस बच्चे को नहीं मालूम था कि ये शख्स इतना सफाक दरिंदा है, ये किसी बेड़िए से कम नहीं है। वो इस शख्स की बातों में आया, बातों में आ भी सकता था ना, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे अपने अजीज़ो कारब से नहीं मिलेंगे तो वो मिलेंगे किससे? लेकिन हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि हमारे अजीज़ रिश्तेदारों में, हमारे उन करीबी रिश्तेदारों में इस तरह के बेड़िए भी मौजूद हैं जो हमारे और आपके बच्चों पर इस तरह की नज़रें जमाए बैठे हैं कि उनका बस नहीं चलता कि वो कब और किसी वक्त भी आपके और मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो ये मुलज़म पुलिस की हिरासत में है। इसने सारा वाक़या तस्लीम कर लिया हुआ है, किस तरह इसने उस बच्चे को वर्गलाया, अपनी बातों में लिया और खेतों में ले जाकर इसने उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और इसका जो साथी जो ये बता रहा है कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है, वो मफरूर है। अनकरीब 1-2 दिन में वो भी पुलिस उसे भी गिरफ़्तार कर लेगी। और ऐसे मुलज़मान की सज़ाए मौत की सज़ा जो उनसे ना इस कदर बदतर सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग या इस तरह के जो वारदात करते हैं वो लोग इबरत का निशान बन सके। मेरी तमाम पुलिस से, अदलिया से ये गुजारिश है कि इस मुलज़म को किसी किस्म की कोई रियायत न दी जाए। इस मुलज़म को फौरी सज़ाए मौत के तख्तादार पर लटकाया जाए। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।